स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। एंड इसी के साथ साथ हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्राइंगल्स एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक 3 साइड फिगर होती है जिसमें हमें क्या करना होता है कि एक पॉलिनोमियल को पॉलीगन को बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में प्रॉपर्टीज देखते हैं और हमें यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग ट्राइंगल। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ट्राइंगल्स में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स जस्ट लाइक ए बी, बी सी एंड सी ए, एंड 3 वर्टिसेस जस्ट लाइक ए बी सी, एंड 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एंगल्स के बने। The 3 angles just like angle BAC, angle APC and BCA are called the angles of a triangle. We do not denoted them as angle A, B, C or angle 1, 2, 3 as shown in the given figure. Just like this one, angle 1, angle 2 and angle 3. Now come to construction of triangle. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास ये कुछ फिगर्स हैं, तो देखते हैं किस किस टाइप से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज जस्ट लाइक साइड 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 ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमें 3 साइड्स गिवन होंगी कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड देखते हैं हमारे पास और कोई टाइप है क्या। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकेंड इज साइड एंगल साइड ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन in which we have 2 sides and 1 angle is given. Okay, let's see our next property. This is the third part. This is angle side angle triangle construction. Here we are having 2 angles and 1 side to construct a triangle. Okay, this is our third case. Then we are having fourth case. Here we are having right hand side, right angle, hypotenuse and one side is given to construct a triangle. Have you seen here angle that is 90 degree? This is a perpendicular and this is a hypotenuse and this is a side. So we are having right angle, hypotenuse and side to construct a triangle. Okay, so we are having exercise 6.1. Okay, in exercise 16.1, we are going to construct a triangle which we have discussed earlier. चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा। Okay, we are going to start our exercise 16.1 and here we are having question number. So let's pick question number 2. Okay, now we are having a question that is construct a triangle PQR where PQ is 4 centimeter, QR is 3 centimeter and RP is 5.5 centimeter. Also draw perpendicular bisector. Okay. Now we are having a triangle. Just make a rough figure just like this. We are having triangle PQR. PQ we are having 4 centimeter. QR we are having 3 centimeter. RP is 5.5 centimeter. Clear? So now we are going to construct our triangle first. Use a ruler. First we are going to draw this line segment QR and this is of 3 centimeters. So we are going to construct 3 centimeter. Clear? This is QR and this is 3 centimeter. After that we have to construct PQ. For this we are going to use compass and we will adjust it 4 centimeter. And after that we are going to put a cut just like this. And after that we are having PR and this is for 5.5 centimeter. So we are going to use our compass again. And this is 5.5 centimeter. Okay. And put in another arc. After that, you have to join this arc with the help of ruler. Just join from here to this.
and from this point to this point. So this is our E. तो अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है, दैट इज आर ट्राइंगल PQR. एंड अब हम इसका यहाँ पे क्या करने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है. तो बेस हमारा क्या है, QR. तो हम इसी को क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे. अब आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पर आपको कंपास एडजस्ट करना है और यहाँ पर एक कट लगाना है अपर साइड जस्ट लाइक दिस, और ऐसे ही हम एक लोअर साइड यहाँ पर कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, फिर से यहाँ पर एक कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस, एंड उसके बाद एक लोअर साइड फिर से कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस. क्लियर. देन अब हमें इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है. यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे. सो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें कोई एक एंगल बनाना है. ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ ट्रायंगल BAC वेयर BC is 5 centimeter and angle B and angle C are given. Okay, so let's make a rough triangle first, just like this, जिससे कि हमें कुछ आइडिया हो जाए. अब यहाँ पे हम इसका नाम ले देते हैं ABC, और जो हमें BC गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर. एंगल B हमारे पास कितना है, 50, एंड एंगल C हमारे गिवन है यहाँ पर 70 डिग्री. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC दैट इज फॉर 5 सेंटीमीटर. चलिए यहाँ से कर लेते हैं. And this is a 5 centimeter line, and this is a B and C, 5 centimeter. After that on D we have to make an angle of 50 degree. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रोटेक्टर. This is our protector. Now we are going to mark an angle of 50 degree. So we are going to start from the right hand side. तो ये रहा हमारा 50 degree. Clear? And on C we have to make an angle of 70 degree. तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे एंड देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दिस इज अ 70 डिग्री पॉइंट. चलिए अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं. पॉइंट B से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन आर अनदर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ऑफ 70 डिग्री. तो चलिए यहाँ पर हमने क्या करा, एंगल B भी देख लिया, एंगल C भी देख लिया. एंगल B हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया 50 डिग्री, एंगल C हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया 70 डिग्री. एंड हियर वी आर हैविंग अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज पॉइंट A और वर्टेक्स A. सो वी आर हैविंग ट्राइंगल ABC इन दिस वे. ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग सम अदर. ओके, now come to our question number 14. We are going to use, in question number 14, using ruler and compass only construct the following triangles. Okay, so let's choose question number 14 D part. Now choose question number 14 E part. Okay, here we are going to construct a triangle ABC. Okay, we are having BC is given. Let's make a triangle first. तो हम यहाँ पे एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस. एंड यहाँ पे हमें गिवन है ABC. तो दिस इज ABC. तो देखिए यहाँ पर हमें BC गिवन है दैट इज 4.4 सेंटीमीटर. तो उसके लिए हमें यहाँ पर एंगल B और एंगल C पता होने चाहिए. अब देखिए एंगल A हमें यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है, एंगल B हमें जो गिवन है दैट इज 60 डिग्री इज गिवन. एंगल C हमें नहीं पता. अगर हम एंगल्स का सम निकालेंगे ट्राइंगल का, देन वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी. द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर हैविंग एंगल C इज 30 डिग्री. तो कभी कभी हमें यहाँ पर ऐसा भी करना पड़ता है कि हमें यहाँ पर खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, नाउ स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ
a line segment BC that is of 4.4 centimeter. Clear? So this is our BC 4.4 centimeter. Okay, now we are having angle B. तो अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है कि हमें यहाँ पर जो एंगल बनाने वो बनाने विद द हेल्प ऑफ कंपास ओनली. तो चलिए कंपास लेते हैं. हमने यहाँ पे कंपास लिया एंड यहाँ पर इसको प्लेस करते हैं जस्ट लाइक दिस. अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगाना है. ठीक है, इसको उठा के आपको सेम इसी पॉइंट पे करना है जहाँ पे लाइन और ये आर्क टच हो रहा है. एंड देन यहाँ पे आपको उसको कट कर देना. ठीक है, जैसे आपने कट करा तो इस पॉइंट से और ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है आप इसको ज्वाइन करेंगे जस्ट लाइक दिस. क्लियर? ये बन गया आपका 60 डिग्री. अब सेम वे हमें एंगल सी बनाना है 30 डिग्री. तो चलिए यहाँ से करेंगे हम. ओके, तो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्ट करा, एक आर्क लगाया, फिर सेम पॉइंट पर यहाँ पर हम अपना कंपास रखेंगे. अब देखिए यहाँ पर जो आर्क लगाया है अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे दिस इज ऑफ 60 डिग्री. तो अब हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है. तो हाफ करने के लिए हम इसका बनाएंगे एक बाइसेक्टर. ठीक है, बाइसेक्टर बनाएंगे. तो अब यहाँ पर हम एक कट लगाते हैं सेंटर में जस्ट लाइक दिस. एक पॉइंट यहाँ से रख के लगाया. ओहो शिट, फिर इसको दोबारा करना पड़ेगा हमें. चलिए कंपास ले लेते हैं. अब देखिए बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें लेंथ सेम होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक आर्क बना लेते हैं. यहाँ से टच करा, इसको यहाँ पर प्लेस करा और एक यहाँ पर हमने आर्क बना लिया जस्ट लाइक दिस. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हम इसको दोबारा क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट. तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट आया है हमारा आया ए दैट इज ऑफ 90 डिग्री. ये हो गया हमारा 60 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक 90 डिग्री भी फॉर्म होता है. फिर तो हमने यहाँ पे कोई प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करा है, हमने बस यहाँ पर कंपास यूज़ करा था. चलिए उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं. तो आप ये भी सारे एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं. आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. ओके, नाउ वी आर हैविंग सम ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. ओके, हियर वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो ये होती है, यहाँ पर हमारे पास एक बेस होगा एंड 2 इक्वल साइड्स होंगी. ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द साइड्स other than 2 equal sides are called the base of the triangle, and BC is the base of a triangle. And here also we are having 2 angles which are equal at base. अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास equal sides थी just like AB and AC, an angle opposite to these sides are also equal. तो angle AC AB के अपोजिट में क्या है C एंड एंगल AC के अपोजिट में क्या है B. ओके, अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी एंड उनके बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 16.2. नाउ वी आर गोइंग टू चूज वन क्वेश्चन. ओके, हियर वी आर हैविंग PQI is an isosceles triangle where PQ equals to PR. Let's make a rough triangle only for understanding purpose. So here we are having PQR. So PQ equals to PR, okay, and angle Q is 45 degree. Okay, find the measure of other 2 angles. Okay, so here we are having PQI is an isosceles triangle. This is triangle PQR is an isosceles triangle. So here we are having PQ equals to PR
So therefore these two sides are equal, so angle Q equals to angle R equals to 45 degree. क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. देन उसके बाद हमें एक प्रॉपर्टी और पता है, दैट इज आवर एंगल सम प्रॉपर्टी. सो वी आर हैविंग एंगल सम property. So angle sum property we are having, that is angle, here we are having P plus angle Q plus angle R equals to 180 degree. ठीक है. चलिए उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास जो होगा एंगल Q एंड एंगल R इज ऑफ 45 डिग्री. ओके, तो एंगल Q 45 degree, angle R is 45 degree, and here we are having angle P. So if we add these two angles, we are having 90 degree, and the value of P, that is angle P, is equals to of 90 degree also. ओके, हमें बस यही फाइंड आउट करने थे अदर टू एंगल्स. तो एक एंगल तो हो गया हमारे पास 45 डिग्री एंड अनदर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ओके, हियर वी आर हैविंग गिवन फिगर दिस ट्रायंगल ABC and DBC. This is ABC and another triangle is DBC. We are having two triangles, both are isosceles triangle with a common base BC. तो दोनों में कॉमन बेस BC हो गया. इज इट ट्रू टू से ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ACD? गिव रीजंस. ओके, तो देखिए जब ऐसा कुछ पार्ट आता है तो हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करना होता है. ठीक है. ओके, सॉरी. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अभी के यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं टू ट्राइंगल्स. लेट्स राइट दैट इज इन ट्राइंगल ABC and triangle BDC. ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स. तो चलिए अब देखिए दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं AB AC की इक्वल है एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस साइड. ओके, तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड BDC. तो देखिए दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, तो ये क्या होंगे, क्रॉस वाइज भी इक्वल होंगे. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं जस्ट लाइक BC, दोनों में कॉमन आ रहा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो AB है, AB साइड हमारी ये किसके इक्वल है, BD के. तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू BD एंड जो AC है वो किसके इक्वल है हमारे पास, DC के. तो एक प्रॉपर्टी होता है हमारे पास, जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो हमारे पास जो ट्राइंगल होते हैं ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC बाय SSS रूल. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC equals to triangle BDC by CPCT, congruent part of corresponding triangle. तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. क्लियर. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. अब आते हैं हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम. अभी के पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा ही राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है. क्योंकि ये थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होंगे. ठीक है, तो यही है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम. यानी होते पाइथागोरस ट्रिपलेट. यहाँ पे सीक्वेंस रहता है हमारे पास जस्ट लाइक 3 4 5 5 12 13. इनका जो फॉर्मेट होता है या तो आप ऐसे कर सकते हैं C² को C² प्लस BC
या फिर इसका फॉर्मूला होता है बस 2n देन n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। तो इस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर तो और कुछ नहीं, आगे चलता है। सो वी आर हैविंग एक्सरसाइज 16.3, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, तो इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं जो ट्राइंगल बेस जैसी होगी। ladder of 3 centimeter long is placed against a wall. Suppose this is a wall and this is our ladder and this is our road. Clear? 3.7 meter long is placed. So this is 3.7 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास वॉल की लेंथ हमें नहीं पता एंड इन सच अ वे दैट द फुट ऑफ द लेडर इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.2 मीटर। क्या दिस इज ऑल्सो इन मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वॉल टू विच द लेडर रीच। तो we have to find out this height. So let's name it A, B, C. So we are having a 90 degree here, क्योंकि देखिए जो रोड है और जो हमारी वॉल है वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होगी, हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या होगा हमारे पास, जस्ट लाइक ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना करने के बाद आप थोड़ी सी वैल्यूज पुट करते हैं। अभी की जो ए सी है दैट इज 3.7 मीटर, ए बी तो हमें फाइंड आउट करना था, हम लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर, बी सी है हमारे पास 1.2 मीटर। क्लियर? चले अब इसको सॉल्व करते हैं। 3.7 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए निकालते हैं सारा। ओके सो वी आर हैविंग 37 स्क्वायर 4। So we are having 1, 3, 6, 9. ठीक है। Then here we are having AB square. तो कहेंगे तो 144. That is meter square. क्लियर? ये प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -113.69 मीटर स्क्वायर माइनस 1.44 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। हम इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, दिस इज 2, दिस इज 1225। क्लियर? चलिए अभी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सो दिस इज ए बी एंड 3 4 12, तो दिस इज 3.5। स्क्वायर रूट आप लोगों को निकालने आते ही होंगे, तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर प्लस टू ए बी। दैट इज योर आंसर। क्लियर? इस साइड से आपको उसको सॉल्व करना था। चलिए बाकी पार्ट सेम इसी टाइप से। तो देखिए यहाँ पे हमें पाइथागोरस टेम्पलेट गिवन है, जस्ट लाइक हमारे पास एग्जांपल भी था 5, 7, 12, तो आप उसके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बाकी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है, जस्ट लाइक हमने ले लिया बी सी, और इसके अपोजिट जो पॉइंट होगा वहाँ से हम एक लाइन ऐसे इस पर लाई करेंगे और वो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दैट इज आर मीडियन। ओके, सो मीडियन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट इट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये किसका काम करते हैं, मिड पॉइंट का काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका हाफ पॉइंट बनाना होता है इफ यू हैव टू मेक अ
मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस ट्राइंगल हमारे पास 3 मीडियंस हैं जस्ट लाइक ए डी बी ई एंड सी एस। ठीक है, यहाँ पे आता है होल 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट, हेंस द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। द पॉइंट एट विच द मीडियन ऑफ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। तो ये जो जी पॉइंट है दिस इज अ सेंट्रॉइड, एंड जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जो भी वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा दैट इज 2, एंड जो सेगमेंट वाला पार्ट होगा दैट इज 1, दैट इज 2:1 ही। तो ए जी एंड जी डी इज 2:1। क्लियर? ओके चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। ओके नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं और वो एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म पे होता है, एंड दैट इज अ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स टू ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। चल लेते हैं यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। The three altitudes of a triangle are concurrent. The point of the concurrent of the altitudes of the triangle is called orthocent. तो जब भी आप 3 altitudes बनाते हैं जहाँ पर intersect करता है there is the orthocenter of a triangle. The altitude of an equilateral triangle are equal. The altitude of altitudes bisect the base of an equilateral triangle. अगर आप altitude बनाते हैं तो वो equilateral triangle को क्या करते हैं bisect करते हैं। Then उसके बाद आता है altitude the altitudes drawn on equal sides of a एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो जब भी आप एल्टीट्यूड्स बनाएंगे इक्वल साइड से तो वो भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर कहाँ पे लाई करता है इंटीरियर। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल पे करें तो वर्टेक्स कंटेन द राइट एंगल्स, एंड ऑर्थोसेंटर ऑफ ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल लाइज एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जस्ट लाइक ये यहाँ पर हो गया, ये इंटीरियर हो गया और ये यहाँ पर एक्सटीरियर पार्ट पे हो गया। ठीक है, आई थिंक ये नहीं, हाँ दिस पॉइंट। क्लियर? चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑब्वियसली बात है ये एक लाइन को क्या कर रहा है इक्वल भी डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर भी, तो दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए हमने बाइसेक्टर्स बनाए यहाँ पर एंगल्स के, सॉरी लाइन के बाइसेक्टर्स बनाए हैं। तो जहाँ पर वो टच करते हैं ठीक है वो होता है हमारा सर्कम सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक्यूट एंगल का ऑब्वियसली इंटीरियर लाई करेगा, सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल वो लाई करेगा हाइपोटेन्यूज का, जस्ट लाइक इसका बाइसेक्टर बाइसेक्टर बाइसेक्टर। ठीक है, और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का ऑब्वियसली आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है। ओके देन सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब आपके पास एक सर्कल होगा एंड देन उसके अंदर क्या होगा एक ट्रायंगल होगा जिसके तीनों वर्टेक्स सर्कल को टच करेंगे। ठीक है, दैट इज अ सर्कम सर्कल, एंड उसके अंदर जो भी आपके रेडियस फॉर्म होते हैं दैट इज सर्कम रेडियस। ओके तो यहाँ पे इसके एफिशिएंट देख लेते हैं। ड्रॉ एनी ट्रायंगल ए बी सी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बॉडी दिस एंड नेम दिस। सॉरी, this is the definition. The circumcenter of a triangle is equidistant from its vertices. ठीक है, चलिए देन हम यहाँ पे बोलेंगे ओ ए ओ बी ओ सी is the circum radius, just like from this point O, A, O, C and O, B. चलिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल कि आप कोई भी एंगल फॉर्म कर रहे हैं आप उसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए so now we are having our exercise 16.4. Okay, here we are having our question number 6. So हमें यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेटर ट्राइंगल ए बी सी ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स एंड मेजर देयर लेंथ्स, आर दे इक्वल। ओके तो चलिए यहाँ पर हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो किसका होगा 5 सेंटीमीटर साइड होगी। ओके तो चलिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट दिस इज 1
देन उसके बाद हम कंपास यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड यहाँ पे कट सॉरी, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 5। ओके, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, देन इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं एंड यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं। चलिए पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, देन वी हैव टू ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स। चलिए एल्टीट्यूड ड्रॉ करने तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हमें यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो कंपास लेते हैं। अब देखिए आपको बस क्या करना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करना है, एक कट को यहाँ लगाना है और एक कट नीचे प्लेस करना है। इसको इधर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। अगेन एक कट हमने यहाँ पर लगाया और एक कट हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, चलिए इसको फिर हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हमारा एल्टीट्यूड भी हो गया। अब फिर से हमें यहाँ पर बनाना है ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स। चलिए फिर से कंपास लेंगे, हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस पॉइंट। चलिए पे ओके, ओके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और एक कट हम यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर सेम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। और एक वेट, ओके, तो ये यहाँ पर कट आना चाहिए था, एक यहाँ पर और एक यहाँ से लेंगे, इसको थोड़ा सा वापस लेकर आते हैं यहाँ पर। सेट, चलिए इस पे यहाँ पे कट लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो चलिए इसको करते हैं यहाँ से जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब एक इस सेगमेंट का भी हमें बाइसेक्टर बनाना है, तो चलिए फिर से कंपास लेते हैं, तो एक इस पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है, इसको ब्लू से कर लेते हैं, दैट इज 4 कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए इसको यहाँ पर एक कट लगाते हैं। ओके, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगेगा और एक इधर की साइड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं जस्ट लाइक दिस, रोटेट करते हैं, एक ये यहाँ गया और एक ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इन अ सेम वे इसको भी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये सब बन गए इसके एल्टीट्यूड्स। तो एक एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये। ठीक है, तो अब आपको देखने की इक्वल लेंथ में है या नहीं है। अब उसके लिए हम ले लेते हैं रूलर, सॉरी, जस्ट लाइक दिस। चलिए पहले इसको मेजर कर लेते हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4.2। ओके, देन उसके बाद चलिए इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, तो एक एल्टीट्यूड ये रहा हमारा, दिस इज ऑल्सो 4.2 एंड ये हो गया, ये हो गया। अब इसको यहाँ से ही मेजर कर लेते हैं। ओके, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 4.2। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही साइड्स हमारी क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके एल्टीट्यूड्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए।
तो देखिए हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर यूज़ करे। आई होप आपको अच्छे क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।